Okay, so now we will continue. That means what? कि petroleum is not a single compound. Petroleum is not a single compound. It consists of it consists of it consists of it consists of petroleum is a complex mixture of compounds known as hydrocarbons. That means petroleum is a mixture of complex compound. ये जो petroleum है, it's a mixture of complex compound. That means what? कि this is a mixture of mixture mixture of complex COMPL, a complex compound COMPOUND. That means what? कि petroleum is a mixture of complex compound. Petroleum is a mixture of complex compound which is known as hydrocarbon. Okay, so which is known as hydrocarbon. It's a mixture, MIXTURE. It's a mixture of compound. It's a mixture of complex compound, which is mixture of complex compound. It's a mixture of complex compound, okay, which is known as hydrocarbons. Hydrocarbons are compounds which are made up of only two elements, carbon and hydrogen. Okay, hydrocarbons is a compound. Hydrocarbon is a compound. That means what? Which is complex compound, which is known as hydrocarbon. Okay, HYDRO, hydrocarbon, hydrocarbon. Okay, it's a mixture of complex compound which is known as hydrocarbon. The hydrocarbon is a complex compound. Hydrocarbon is a complex compound which is made of only carbon and hydrogen element. Okay, hydrocarbon is made of only carbon and hydrogen elements. CARBON, carbon and hydrogen element, and hydrogen element. Okay, hydrogen element. That means what? Ki hydrocarbon is which is consist of hydrogen, carbon and carbon. Okay, ki hydrocarbons are compounds which are made of only two elements, carbon and hydrogen. जैसे butane CH4, methane, ethane, propane, okay, heptane. These are the hydrocarbons. These are the hydrocarbons. These are the examples of hydrocarbons. Okay, so hydrocarbons. कि petroleum is insoluble in water. कि petroleum is insoluble in water. That means what? कि petroleum cannot mix with water. Petroleum cannot mix with water. Suppose that कि milk is also liquid. Petroleum is also liquid, but milk is soluble in water, but petroleum is not soluble in water. Petroleum is a natural resources. Which is obtained from deep oil wells which are dug in certain areas of the earth. That means what? Petroleum जो है is insoluble water. Petroleum is natural resources. Petroleum जो है वो natural resources है, which dug out certain areas of the earth. Just like coal, petroleum is also fossil fuel. So please note that petroleum is also called crude oil or mineral oil. Okay, so another name of petroleum is what? Crude oil. Another name of petroleum is crude oil, CRUDE, crude oil. Okay, the petroleum is also known as crude oil. Okay, crude oil or mineral oil, MINERAL, mineral oil. Okay, the petroleum is known as also mineral oil. Okay, so crude oil, mineral oil, rock oil, petroleum, these are the names of petroleum. Okay, all are the same substances, all are the same liquid substances. Okay, how petroleum was formed? The petroleum was formed by the decomposition of remains of the tiny plants and animals buried under the millions of our ego. That means what? Suppose करो कि due to what? Some natural disaster, कुछ प्राकृतिक घटना के कारण हजारों साल पहले. That means what? कि thousands of year कह रहे हैं ना, millions of year मतलब million मतलब 1 million equals to 10 लाख, तो millions of year कहने का मतलब हो गया लाखों साल पहले. ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर, कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण क्या होगा कि मे बी बहुत तेज का अर्थक्वेक आया होगा, या फिर कुछ ऐसा डिजास्टर हुई होगी जिससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच इज अवेलेबल अपर लेयर ऑफ द अर्थ, जो भी चीज़ें हमारे अर्थ धरती के ऊपर में था, जैसे कि आपको बताया जैसे एनिमल्स, टीनी प्लांट्स, बुशेज, झाड़ियाँ, अदर थिंग्स, वो जो अपर सरफेस पे अर्थ पे था, ड्यू टू दिस क्या हो गया कि वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया. दैट मीन्स व्हाट, अर्थक्वेक से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स कमिंग फ्रॉम द अंडर जो
नीचे वाली चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो नीचे चल जाएगी। तो ड्यू टू अर्थ की क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो अपर लेयर ऑफ द सरफेस में प्रेजेंट था वो क्या हो गया कि इनसाइड ऑफ द अर्थ चला गया, इनसाइड ऑफ द अर्थ चला गया। ओके, their dead bodies sunk to the bottom of the sea and were soon covered with the mud and sand. Due to high pressure, heat, action of bacteria and the absence of air, the dead animals of tiny plants and animals were slowly converted into petroleum. अब देखो क्या होगा, inside the sea, that means समुद्र के अंदर या फिर किसी surface areas में, किसी surface areas में क्या हुआ होगा, as we know that कि inside of the earth there is maximum amount of heat, there is no oxygen, or there is what? Maximum amount of pressure. Okay, so excess amount of pressure, heat and absence of air, or in the presence of bacteria, in the presence of bacteria, all these things are decomposed. ये जो सारी चीजें हैं वो क्या हो गया, डिकम्पोज हुआ है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज होने के बाद क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया, इट्स अ मड। मडी कहने का मतलब है कीचड़ टाइप का एक लिक्विड बन गया, जो बहुत कंप्लीटली लिक्विड तो नहीं बोल सकते, बहुत ही गहरा लिक्विड बोलो, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि presence of solute particle is maximum. Okay, and animals were slowly converted into petroleum. और ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे with respect to time किस में कन्वर्ट हो जाता है, it's converted into the petroleum. Current and extraction of the petroleum. Occurrence and extraction of the petroleum. Other topic is occurrence and extraction of the petroleum. कि petroleum occurs deep under the surface of earth between two layers of impressive rock. Okay, कि petroleum occurs. अब look at the picture. You can see the picture. Look at it. There are, look at this. कि drilling, it's a drilling ring. It's a drilling ring. Okay, natural gas. There is a natural gas and below. अब look at this. Earth crust. It's upper layer of earth crust. It's a seal. Okay, कि impervious rock. Okay, and petroleum. Look at this. कि this is the rock and it's what gases and it's a petroleum and inside this फिर again water and impervious rock. That means देखो petroleum कहाँ पे present है, impervious rock and impervious rock. Okay, between them. Okay, inside this water and petroleum is available here. Water and petroleum is available here. पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर. पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर. लाइटर का कहने का मतलब हो गया हल्का. तो पेट्रोलियम क्या है, वो हल्का होता है, और वाटर क्या होता है, हैवी होता है. LIGHTER. लाइटर मतलब क्या होगा, इट्स अ लेस इन वेट. पेट्रोलियम जो क्या है, लेस इन वेट है, एंड वाटर जो क्या है, थोड़ा सा हैवी इन वेट है. वाटर थोड़ा सा क्या है, भारी पार्टिकल्स है. सो इट्स फ्लोट ओवर द वाटर. ऑब्वियसली कि जिन चीज़ों का मास या जिन चीज़ों का वेट लेस होगा किससे, वाटर के वेट से, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा. क्या करेगा, फ्लोट करेगा अपर लेयर ऑफ द वाटर सरफेस. ओके, दैट्स वाई द पेट्रोलियम, लुक एट द पिक्चर, पेट्रोलियम मोस्टली क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है. अब लुक एट दिस इज द पेट्रोलियम, दिस इज द लेयर ऑफ पेट्रोलियम. अब वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है कि अपर लेयर ऑफ द वाटर, अपर लेयर ऑफ द वाटर, अपर लेयर ऑफ द वाटर में क्या कर रहा है, पेट्रोलियम फ्लोट कर रहा है. सपोज दैट दिस इज द लेयर ऑफ वाटर, दिस इज द लेयर ऑफ वाटर, इट्स लेयर ऑफ वाटर. ओके, अब ऑब्वियसली जो वाटर पार्टिकल्स क्या है, हेवी है किससे, पेट्रोलियम पार्टिकल्स से. ओके, वाटर पार्टिकल्स ये क्या, वाटर H2O, ये क्या, वाटर पार्टिकल्स, ये क्या है, वाटर पार्टिकल्स, PARTICLES, इट्स वाटर पार्टिकल्स. ओके, तो वाटर पार्टिकल्स क्या होगा कि हेवी होगा किसके, पेट्रोलियम पार्टिकल्स के कंपैरिजन में. दैट्स वाई कि पेट्रोलियम पार्टिकल्स क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा. फ्लोट करने का मतलब हो गया ये क्या करेगा, तैरेगा. पेट्रोलियम पार्टिकल्स जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा. दैट मीन्स ये तैरेगा अपर लेयर ऑफ द वाटर, अपर लेयर ऑफ द वाटर. इट्स अ पेट्रोलियम, PETROLEUM, इट्स अ पेट्रोलियम. ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है अपर लेयर ऑफ द वाटर सरफेस. ओके, अपर लेयर ऑफ द वाटर सरफेस, अपर लेयर ऑफ द वाटर सरफेस. कि पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्सड विथ वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स. ओके, अर्थ पार्टिकल्स, सैंड. अब बेसिकली क्या है, पेट्रोलियम कंप्लीटली एक प्योर फॉर्म में नहीं होता है. दैट मीन्स व्हाट कि जब हमको जब इसको ड्रिल करते हैं इनसाइड द अर्थ, जब इस पेट्रोलियम इस सब्सटेंस को निकालते हैं, नहीं इसको टेक आउट करते हैं फ्रॉम अंडर ऑफ द अर्थ, बेसिकली क्या होता है, ये प्योर पेट्रोलियम फॉर्म में नहीं होता. ये एक प्रकार का मिक्सचर होता है. एक प्रकार का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट, इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं. इम्प्योरिटीज दैट मीन्स व्हाट, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, which is not acceptable. Okay, like what, like a sand, okay, salt, water particles. कि petroleum does not occur in all the places of the earth.
कि पेट्रोलियम डज नॉट ऑकर, दैट मीन्स ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। दैट मीन्स आप सपोज करो इतना बड़ा अर्थ है, अब लुक एट दिस कि अर्थ कितना बड़ा है, ईच एंड एवरी प्लेसेस, हर प्लेसेस पे हम पेट्रोलियम प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या किसी पार्टिकुलर प्लेसेस पे होता है, किसी पार्टिकुलर प्लेसेस पे होता है। ओके कि इट इज़ फाउंड इन ओनली सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ, और ये किसी अर्थ का किसी खास पार्टिकुलर हिस्से में होता है, किसी खास पार्टिकुलर हिस्से में होता है। कि मोस्टली हम लोग जानते हैं जो एशियन कंट्री, जो इस्लाम कंट्रीज है, जो डेजर्ट में, जो कंट्री मोस्टली डेजर्ट्स में है, जैसे कि सऊदी अरब, सिंगापुर, दुबई, उसके बाद यूनान, मोस्टली जो भी इस्लाम कंट्रीज़ है, ये क्या है, रिच इन वाट, ये रिच इन मिनरल्स है। इसके पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स ऑयल बहुत ही ज़्यादा। इराक हो गया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इसके पास क्या है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स व्हाट, ये ऑयल, पेट्रोलियम एंड अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स। ओके कि नेचुरल गैस ऑकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल ट्रैप्ड अंडर द रॉक। ओके कि नेचुरल गैस, अब लोग कर दिस कि अदर लेयर जो है वो लेयर, अदर लेयर किसका है, दैट मीन्स व्हाट, ये जो लेयर है, ये जो फिर लेयर है इस तरह का, ये जो लेयर इस तरह का, ये क्या है, नेचुरल गैस का लेयर है। दैट मीन्स व्हाट, ये किसका लेयर है, ये भी नेचुरल गैस का, NATURA, नेचुरल गैस। ये क्या है, नेचुरल गैस का लेयर। दैट मीन्स व्हाट कि पहले नेचुरल गैस, उसके बाद क्या, पेट्रोलियम, उसके बाद वाटर पार्टिकल्स, एंड देन व्हाट इम्प्रेवियस रॉक। ओके कि पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड द ऑयल वेल्स। ओके कि पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड, पेट्रोलियम को जब निकालते हैं बाय ड्रिलिंग होल्स, मतलब होल्स कहने का मतलब हो गया प्रकार का गड्ढा, एक प्रकार का होल करके। ओके कि इन द अर्थ क्रस्ट, कि वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज बीन प्रिडिक्टेड बाय सर्वे। दैट मीन्स व्हाट कि जहाँ पे सर्वे, सपोज करो कि देयर इज अ प्लेस, अब सपोज करो इतना बड़ा एरिया है, आप सर्वे के मुताबिक, दैट मीन्स व्हाट कि देयर इज सम इंडिकेशन। अब सपोज करो कि इनसाइड दिस प्लेस, अब सपोज करो पेट्रोलियम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बेसिकली क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ इक्विपमेंट्स होता है, वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि इनसाइड द पार्टिकुलर प्लेस मे बी देयर इज पेट्रोलियम अवेलेबल। ओके इनसाइड द पार्टिकुलर प्लेस देयर इज पेट्रोलियम इज अवेलेबल। उसी प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं या वेल करते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कि पेट्रोलियम इज अ लाइटर देन वाटर सो इट फ्लोट्स ओवर, एंड द ऑयल वेल्स ड्रिल्ड बाय द यूजिंग ड्रिल रिंग्स। ओके कि द ऑयल वेल का मतलब होता है कुआं, जो तेल का कुआं होता है, ऑयल वेल्स बेसिकली उसको ड्रिल करते हैं बाय ड्रिल रिंग्स होता है। ड्रिल रिंग्स इज अ लार्ज स्ट्रक्चर विथ इक्विपमेंट फॉर ड्रिलिंग एंड ऑयल वेल। ड्रिल रिंग क्या है, एक प्रकार इंस्ट्रूमेंट है, लार्ज स्ट्रक्चर विथ इक्विपमेंट होता है। कि व्हेन एन ऑयल इज ड्रिल थ्रू द रॉक नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट with the great pressure and for a time. Okay, the crude petroleum oil comes out by itself due to the gas pressure. अब look at this. As per the structure, अब थोड़ा सा पिक्चर को देखते हैं। Look at this. As per the structure, अब look at this. This is the oil. This is the rock. It's a rock. It's a rock. ये क्या है मेरा? ये rock है। ये क्या है? rock है जो किसके ऊपर है? ये क्या है? rocks है। ROCKS रॉक्स है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि गैसेस पार्टिकल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। गैसेस पार्टिकल्स में क्या होता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। ये जो गैसेस पार्टिकल्स है, ये जो गैसेस पार्टिकल है जिसको नेचुरल गैस बोल रहे हैं, ये क्या गैसेस पार्टिकल्स है, ये क्या पेट्रोलियम और इट्स अ वाटर पार्टिकल्स। तो ऑब्वियसली गैसेस पार्टिकल्स में क्या होता है, उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। गैसेस पार्टिकल्स का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। जब हम ड्रिल करेंगे ना, ऑब्वियसली जब हम ड्रिल करेंगे तो क्या होगा, जैसे इस ड्रिल मशीन क्या करेगा, इस पार्टिकुलर एरियाज को पास करेगा, जैसे इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो गैसेस होगा ना बहुत ही तेज़ी से, दैट मीन्स व्हाट कि मैक्सिमम प्रेशर के साथ क्या करेगा, ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा थ्रू द ड्रिल। क्या करेगा, मैक्सिमम प्रेशर के साथ क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना स्टार्ट पड़ेगा ड्यू टू दिस प्रेशर। अब ये ऑब्वियसली जब ये मैक्सिमम प्रेशर के साथ ऊपर जाएगा तो मोस्टली ये क्या करेगा कि वो पेट्रोलियम को भी क्या करेगा, पुल करेगा। ये पेट्रोलियम को भी क्या करेगा, ये पुल करेगा विथ द गैसेस पार्टिकल्स, और क्या हो जाएगा कि पेट्रोलियम पार्टिकल्स भी ईजिली उस प्रेशर के साथ ये थ्रू द ऑयल वेल के थ्रू, दैट मीन्स या फिर ड्रिल के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। कि when an oil well is drilled through the rocks, natural gas comes out first with the great pressure, and for a time the crude petroleum oils come out by itself due to the gas pressure. That means what, जब इसको ड्रिल किया जाएगा what कि ऑब्वियसली गैसेस पार्टिकल में ज़्यादा प्रेशर होगा ड्यू टू हाई प्रेशर। ऑब्वियसली क्या होगा कि गैसेस पार्टिकल्स इस ड्रिल थ्रू, इस होल के थ्रू बाहर जाएगा मैक्सिमम प्रेशर के साथ, और ड्यू टू दिस मैक्सिमम प्रेशर कि पेट्रोलियम पार्टिकल्स ऑल्सो पुल किया जाएगा गैसेस पार्टिकल्स के द्वारा, और वो पेट्रोलियम पार्टिकल्स भी ईजिली बाहर निकल जाएगा।
Okay, the rest of the topic I think you should discuss, and refining of the petroleum. Today, next class, I will continue with our next topic is refining of the petroleum. Before that, we will continue with this chapter. Okay, so related to this topic, okay, just solve the exercise questions. Okay, related to this topic, you just solve the exercise questions. Okay, and most of the questions in your next unit test maybe comes from this chapter. Okay, so I hope you will understand. If there is any confusion, you can ask me. So I hope आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. Why? Because mostly I have explained briefly all these things. Okay, and finally, thank you for watching this video.